Bismillahirrahmanirrahim. Today we will study the method of assessment of bioavailability, that is indirect method, and we call it urinary drug excretion data. This data is taken on account that if there is drug in urine, it means that the urine drug comes from the blood. It means that the more and more urine is saturated with drug, same the more and more the plasma level of the drug is decreased, because the source of drug inside the urine is coming from the blood. So यूरिनरी ड्रग एक्सक्रीशन डाटा इट इज़ एन डायरेक्ट मेथड. ये डायरेक्ट मेथड नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट मेथड में आप डायरेक्ट देखते हैं कि ब्लड में कितना लेवल ऑफ ड्रग है. चूँकि ये तो ब्लड नहीं है, ये हम एक असेसमेंट करते हैं इनडायरेक्टली. अगर ये तब पॉसिबल है अगर ड्रग पोलर हो और ड्रग हाइड्रोफिलिक हो और पूरा का पूरा ड्रग जो है वो यूरिन से एक्सक्रीट होता हो. अगर ड्रग हिपेटिक क्लियरेंस भी करता हो, हिपेटिक एक्सक्रीशन भी करता हो, तो हमारे पास ये डेटा सफिशिएंट नहीं है कि हम प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग फाइंड करें. इसका हम इस तरह मिसाल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल दो जगह हैं. एक है यहाँ पर this is blood and this is one pipe and this we take urine. So for example we take that here is 5 milligram of drug, and after some time, this is 0 time that we take that 5 milligram of drug. After 5 minutes of time, this 5 milligram of drug comes to 3 milligram of drug, and the 2 milligram of drug is excreted along with fluid outside the body, and this means that 2 milligram of drug will come here. If out of 5 milligram the 2 milligram of drug is present here in the urine, it means that this data is sufficient that we check that 5 milligram of that is 3 milligram of drug is remained in the blood. So the values inside the blood may be checked indirectly if the urine concentration of the drug is find it out, and the urine concentration of drug is sufficient and the data is more accurate at that time when the drug is fully and completely hydrophilic and there is no fraction of drug excretion through the hepatic. hepatic that is लीवर से कोई भी ड्रग नहीं पास हो रहा, सारा का सारा ड्रग जो है यूरिन से पास हो रहा है. तो हम यूरिन में देखते हैं जो ड्रग यूरिन में है वो हम देखते हैं कि वो ब्लड में नहीं होता, और जो ब्लड में मौजूद होता है वो यूरिन में नहीं आता. तो ये एक रिलेशन है जिसे हम फाइंड करते हैं कि हाउ much of the drug is present inside the blood. So this process needs some requirements that the drug must be excreted through the kidney. ड्रग कम्प्लीटली एक्सक्रीट होगा किडनी से. अगर ये नहीं है तो ये प्रोसेस इम्पॉसिबल है. यूरिन सैंपल मस्ट बी कलेक्टेड एंड टेस्टेड. यू शुड आल्सो टेक द यूरिन एंड collect and check the data. If you do not check the data in the urine, you may not assess through urinary drug excretion data the bioavailability. So here the parameters which are used to determine the bioavailability of a drug is DU. We check the DU. More the DU, what is meant by DU? Amount of drug excreted in urine. You check the urine and you find that some of the drug is present here in the urine. So the drug that is present in the urine, that is an amount. For example, say here we take it 2 milligram. This 2 milligram of drug, this may be represented as DU. Here is equal to 2 milligram of the amount of drug which is excreted in the urine. Drug is experimentally tested in urine after we administer the drug into the body, and after some time we check here the ड्रग इन द यूरिन. तो हम देखते हैं कि यूरिन में ड्रग मौजूद है या नहीं है.
पहली दफ़ा जब हम देखते हैं कि यूरिन में ड्रग आ गया, इसका मतलब है उस टाइम से हम डेटा कलेक्ट करना शुरू करेंगे। एक टाइम पर देखा, दूसरे टाइम पर देखा, तीसरे टाइम पर देखा, हम देखते हैं कि यूरिन में विद द पैसेज ऑफ टाइम द ड्रग इज़ इंक्रीजिंग इन द कंसंट्रेशन। हम देखते हैं जो जो टाइम गुजरता है यूरिन में ड्रग कंसंट्रेशन का आना ज़्यादा हो जाता है। इसका मतलब है जितना टाइम ज़्यादा बढ़ेगा उतना ड्रग की एक्सक्रीशन बढ़ेगी, क्योंकि ओवरऑल डेटा हम एरिया अंडर करो से जब हम लेते हैं तो हम इस तरह डेटा लेते हैं कि पहले ये कंसंट्रेशन है, ये टाइम है, ये कंसंट्रेशन पहले इंक्रीज़ होता है ब्लड प्लाज्मा में, ये हम ब्लड के लिहाज से लेते हैं, या तो हमने यूरिन लिया है और इससे आगे जो है ये एक्सक्रीट होता है। तो ये जो एक्सक्रीशन का डेटा है, ये एक्सक्रीशन कहाँ पर होती है, इस केस में ये एक्सक्रीशन यूरिन में फॉर एग्जांपल होती है। तो इस एक्सक्रीशन ये तो ब्लड में कंसंट्रेशन इस तरह आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ हो रहा है जो कि हमने यहाँ पर फाइंड किया है, और यहाँ पर जो ड्रग की कंसंट्रेशन है यूरिन वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है, और ऐसे हम फाइंड करते हैं कि कितना ड्रग एक्सक्रीट हुआ है, कितना अभी बाकी है ब्लड में। ग्राफ इज़ कंस्ट्रक्टेड, इसके डेटा हम कलेक्ट करते हैं और हम चेक करते हैं, इसका एक ग्राफ बनता है, इसको हम कंसंट्रेशन को हम चेकते हैं मशीन थ्रू पिलेनीमीटर और HPLC, तो उसका हम टाइम टू टाइम ग्राफ लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एक टाइम पर इतना कंसंट्रेशन है, दूसरे टाइम पर इतना कंसंट्रेशन है, तीसरे टाइम पर इतना है, फिर उसके बाद कंसंट्रेशन बिल्कुल ज़ीरो पर आ जाती है, तो हम देखते हैं कि इस टाइम पर इतना ड्रग एक्सक्रीट हुआ, इस टाइम पर इतना ड्रग एक्सक्रीट हो गया। यहाँ पर हम दूसरा जो पैरामीटर हम इस्तेमाल करते हैं वो है इधर है ड्रग इन यूरिन। तो 8.A द ड्रग इन यूरिन इज़ ज़ीरो एंड द बिगिनिंग ऑफ ड्रग इन द यूरिन अकर, यहाँ पर शुरू हो जाता है ड्रग यूरिन में एंटर होना 8.A, लेकिन अभी शुरू हुई है। जब ये शुरू हो जाता है तो इसी तरह यहाँ पर ये है, यहाँ पर ड्रग की कंसंट्रेशन एट दिस टाइम ड्रग कंसंट्रेशन इंक्रीज एंड मैक्सिमम ड्रग कंसंट्रेशन इन यूरिन इज हेयर। आफ्टर दिस the urine concentration of drug up to such time does not differ up to from B to C. It means that here the urine is coming out of the body with equal amount of ड्रग। यहाँ से यहाँ तक इक्वल अमाउंट ऑफ ड्रग विद दिस टाइम, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए यो, तो ये यहाँ पर जो ड्रग है वो सेम कंसंट्रेशन में होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती जाती, एक्सक्रीशन ज़्यादा होती नहीं जाती। और आखिरकार एक पॉइंट आ जाता है कि उसके बाद अगर हम टाइम यहाँ पर अगर हम टाइम इसके बाद जो टाइम है ये यहाँ तक पहुँच गया, इस टाइम पर हम देखते हैं तो टोटल का टोटल ड्रग एक्सक्रीट हुआ होता है, और वहाँ पर कंसंट्रेशन हमारे पास डायरेक्ट फिलअप होती है, falls to the 0 point. Now here the other parameter which is used in this data is a rate of drug excretion through urine, that is represented by DU, this is drug in urine per unit time. फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम देखते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस जो हैं वो एलिमिनेशन रेट पर डिपेंडेंट होती हैं, और वो कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग एलिमिनेशन रेट जो होती है वो कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग प्लस कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग पर डिपेंडेंट होती है। मैक्सिमम रेट ऑफ एक्सक्रीशन, यहाँ पर हम अगर रेट ऑफ एक्सक्रीशन या तो हम सिर्फ और सिर्फ DU के लेते हैं कि इतना ड्रग है इतना, यहाँ पर सिर्फ हम कंसंट्रेशन इस रेफरेंस में लेते हैं, लेकिन विद रेफरेंस टू टाइम हम देखते हैं स्पीड ऑफ द एलिमिनेशन। तो स्पीड ऑफ एलिमिनेशन, स्पीड इज इक्वल टू पर यूनिट टाइम ड्रग एलिमिनेशन पर यूनिट टाइम। तो हम यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ A अप टू B the speed of the drug elimination increases, that is the rate of the drug elimination increases, that is concentration increases more with less time increase। टाइम इतना नहीं बढ़ता जाता जितना ड्रग एलिमिनेशन का ड्रग की ये ड्रग कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है, और हम देखते हैं कि रेट ऑफ, इसको हम कहते हैं रेट। अब ये रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यूरिन कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग एंड रेट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। यहाँ पर देखते हैं अगर टाइम कांस्टेंट लिया जाए, फॉर एग्जांपल ये 1 है ये 2 है, तो सेम टाइम में 1 2 मिनट में, पहले मिनट में इतना लिया है, दूसरे मिनट में बहुत बढ़ जाता है, तीसरे मिनट में बहुत बढ़ जाता है। तो विद कांस्टेंट टाइम इंक्रीज the urine concentration of drug increases much more, that is mean that there is constant increase in the drug elimination। तो यहाँ तक रेट इंक्रीज होता जाता है।
फिर बाद में बी से सी तक यहाँ पर हम देखते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन यूरिन, ये कंसंट्रेशन की डेटा है, इससे ऊपर जाती है कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर तो कंसंट्रेशन कांस्टेंट रही है, इससे आगे नहीं जाती। इसका मतलब है कि अगर ये डेटा कांस्टेंट है, ये टाइम तो वैसे भी कांस्टेंट होता है, कांस्टेंटली इंक्रीज होता जाता है। इट मीन दैट फ्रॉम दिस फेज टू दिस, फ्रॉम बी टू सी, देयर इज नो रेट इंक्रीज इन द ड्रग एलिमिनेशन. The drug elimination process is a constantly. The rate of drug excretion through the urine is constant from B to C. And after C, the elimination or rate of elimination directly comes to 0, because here the drug in urine becomes 0. Drug in urine divided by time. यहाँ पर टाइम तो हमारे पास फॉर एग्जांपल आखिर खत तक पहुँच गया है, तो 0 डिवाइड बाई एनीथिंग इज इक्वल टू 0. इट मीन दैट एट दिस स्टेज द रेट ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन बिकम्स अगेन टू 0 एट पॉइंट बी मिनिमम एंड एट पॉइंट ए एंड इज 0. ये ए पर हमारे पास चूँकि ड्रग की कंसनट्रेशन 0 है तो रेट ऑफ एक्सक्रीशन इज 0, एंड सी पर हमारे पास डायरेक्ट ये फॉल अप होता है टू द 0. कंसंट्रेशन 0 होती है ए और सी पर, इसी वजह से हम कहते हैं रेट ऑफ एलिमिनेशन इज 0 एट दिस पॉइंट. नाउ वी टेक द टी total time in needed for drug to be excreted is A to C. यहाँ से यहाँ तक का टाइम कि यूरिन में ड्रग आने से लेकर जो ड्रग कम्प्लीटली एक्सक्रीट होता है और नेक्स्ट जो कमिंग यूरिन होता है वहाँ पर ड्रग की कंसंट्रेशन मौजूद नहीं होती, तो उस टाइम तक हम देखते हैं कि कितने टाइम में ड्रग यूरिन की तरफ आया और कंप्लीट इंक्रीज होता है हत्ता कि कंप्लीट ड्रग एक्सक्रीट हुआ और यूरिन में वो कंसंट्रेशन फिर 0 पर आ जाती है. तो ये टोटल टाइम हम लेते हैं, उसको हम कहते हैं टी, टोटल टाइम excreted. It is a from A to C, that is in the slope in the graph is related to the rate of. जब भी हमारे पास ग्राफ में कोई स्लोप आता है with reference to the slope in the y axis with reference to the x axis, जो भी यहाँ पर डेटा हम पुट करते हैं वो y एक्सिस पर डिपेंडेंट होता है. क्योंकि ये जो ऊपर वाला ऊपर करो जाता है तो ये y एक्सिस पर जाता है, और जब इस साइड पर करो आता है तो ये x एक्सिस पर आता है. इसका मतलब है कि जब स्लोप आता है, स्लोप का मतलब है कर्वेचर आता है, इस तरह का कर्वेचर आता है. इट मीन दैट हेयर सम इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्रोसेस because if we here take time at the x-axis we take time, it means that time is constant, but the concentration of drug either increases at that constant time or either decreases at that constant time. So it means that जो ग्राफ में स्लोप आता है वो हमारे पास रेट डिटरमाइन करता है. अगर स्लोप नहीं आता है तो हमारे पास रेट कांस्टेंट रह गया. फॉर एग्जांपल ये हमारे पास लीनियर लाइन है, तो ये लीनियर लाइन जो है अगर y के साथ लीनियर होता है या x के साथ एक लीनियर लाइन होता है विद y एक्सिस पैरेलल होता है या y x एक्सिस के साथ पैरेलल होता है. इसका मतलब होता है कि या ना तो ड्रग के टाइम में इंक्रीज आता है या ड्रग के कंसंट्रेशन में इंक्रीज नहीं आता. तो इसका मतलब है इधर इसमें से एक चीज़ का आपको कांस्टेंट ले लें तो ये हमारे पास रेट में इंक्रीज नहीं आएगी, वो कांस्टेंट रहेगा. एट पॉइंट सी टोटल टाइम फॉर ड्रग टू बी एक्सक्रीटेड. पॉइंट सी पर हम देखते हैं कि कितना टाइम लिया है ड्रग ने पूरा का पूरा एक्सक्रीट होने में. यहाँ पर हम बार बार एक चीज़ देखते हैं कि फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द drug. If the drug process is second order, what would be the process of elimination or what would be the rate? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम ये इस तरह डिफाइन करते हैं. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन द डिपेंडेंसी ऑफ रेट ऑफ द प्रोसेस इन रेफरेंस टू द सब्सटेंस रेज टू इट्स पावर. इसको हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन. तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होता है उसका पावर जो होता है उसका पावर यहाँ पर कंसंट्रेशन का डिपेंडेंसी ऑफ रेट का पावर जो होता है ये यहाँ पर 1 होता है कंसंट्रेशन. तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब ये होता है कि ये 1 टाइम इंक्रीज़ होता है. अगर आप इसके कंसंट्रेशन को रेट जो है वो 1 टाइम इंक्रीज़ होता है अगर आप कंसंट्रेशन को यहाँ पर 1 टाइम इंक्रीज़ करें. दैट इज़ इफ़ ए इज़ इक्वल टू फ्रॉम 1 इट इज़ टेकन टू 2 then the rate will increase up to 2.
For second order processes, rate is directly proportional to the concentration square. सेकेंड ऑर्डर प्रोसेस फॉर थर्ड ऑर्डर प्रोसेस कंसंट्रेशन क्यूब. तो यहाँ पर हम किस तरह के लिखते हैं? फॉर एग्जांपल इफ रेट ऑफ ए फ्रॉम 1 goes to 2 for example, so what will come? The rate is equal to is directly proportional to 4, तो ये 4 टाइम इंक्रीज होगा फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. द रेट विल इंक्रीज 4 time if it moves from 1 to 2, and for first order reaction the rate increases 2 times if the concentration goes from 1 up to 2. Initially we will discuss the next type.